नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आज भालकी तालुका के हलबरगा में एक कार्यक्रम। बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा हज 2030 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भरने का कार्य जारी। बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी कॉलेज के छात्र की गिरने से मौत, एसएफआई ने संस्थान पर लगाया आरोप। बल्लारी में अमित शाह बोले, कर्नाटका को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बीजेपी। कांग्रेस और देश के लिए चुनौतियों से भरा वक्त, बीजेपी और आरएसएस ने हर संस्थान पर किया कब्जा, सोनिया गांधी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आज भालकी तालुका के हलबरगा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू और हावलिंगेश्वर शिवचार्य ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्नड़ साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश चंदशेट्टी और भालकी तालुका अध्यक्ष नागभूषण मामदी ने किया। कार्यक्रम से पहले ग्राम में एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। भालकी तालूकिನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬರೀ ನಗರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮಾಮಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಹಿರಿಯರು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಹಲಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ 6ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಕರದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ, ಒಂದು 50 ಜನ ಇವತ್ತವರು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೇ ಬಹಳ ವೈಭವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಜನರ ಸಹಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದೆರಡು ಚಿಂತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿವೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಅವಧಿ ಸದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚಂದಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಈ ಹಲವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ, ನುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಗಭೂಷಣ ಮಾಮಡಿ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಸಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा हज 2030 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भरने का कार्य प्रतिदिन चल रहा है। इस वर्ष एप्लीकेशन फॉर्म्स विदाउट प्रोसेसिंग फीस भरा जा रहा है। अंजुमन द्वारा हर साल की तरह बीदर जिले के हज यात्रियों के लिए आवेदन निःशुल्क भरने का काम कर रही है। अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने कहा कि हर सुबह 10 बजे से शहर, तालुका और ग्राम से लोग आकर एप्लीकेशन भरवा रहे हैं और अब तक लगभग 100 से 150 एप्लीकेशन भरे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी तौर पर भी एप्लीकेशन भर के अनुमान में हार्ड कॉपी दाखिल कर रहे हैं, जो बेंगलुरु हज समिति पहुंचाई जाएंगी। अंजुमन के सदस्य शफीक अहमद कलीम, सैयद आसिफ हुसैन, मोहम्मद शाहनवाज प्रतिदिन कार्यालय में बैठकर एप्लीकेशन दाखिल करने का काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 10 मार्च है। लोगों से आग्रह किया गया है कि समय के भीतर अपने एप्लीकेशन दाखिल करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एपीयू में एक स्नातकोत्तर छात्र शुक्रवार 24 फरवरी को कॉलेज के उत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान नृत्य करते समय गिर गया।
और उसकी मृत्यु हो गई। 26 वर्षीय अभिजीत शिंदे MA प्रथम वर्ष के छात्र जो नासिक से थे, महाराष्ट्र उत्सव में नाच रहा था जब वह अचानक गिर गया। तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अभिजीत परिसर में एक छात्र विरोध का हिस्सा थे और उन्होंने 22 फरवरी को भूख हड़ताल में भाग लिया था। विश्वविद्यालय ने कहा कि मृतक छात्र ने 23 और 24 फरवरी को भूख हड़ताल में भाग नहीं लिया था। विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर कैंपस में छात्र की मौत पर सदमा और दुख व्यक्त किया है। बयान में आगे कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्र के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से हम स्तब्ध और गहरे दुख में हैं। वार्षिक छात्र उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान छात्र गिर गया और तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इस बात पर बहुत अफसोस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 23 फरवरी को बल्लारी की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी और कहा कि भाजपा के साथ कर्नाटक 5 साल के भीतर दक्षिण भारत में नंबर 1 राज्य बन जाएगा। बल्लारी में कांग्रेस के गढ़संदूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस और जेडीएस पर भी निशाना साधा और उन्हें वंशवादी दल करार दिया जो लोगों का भला नहीं कर सकते। शाह ने दावा किया कि एक बार पीएम मोदी और येडियुरप्पा पर भरोसा करें और हम बीजेपी ऐसी सरकार देंगे कि यह कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी और इसे 5 साल के भीतर दक्षिण भारत में नंबर 1 राज्य बना देगी। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार सार्वजनिक कार्यों को चालू करने, निविदाएं जारी करने और कई अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस और पूरे देश के लिए चुनौतियों से भरा समय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और उसे बर्बाद कर दिया है। कुछ कारोबारियों का पक्ष लेकर आर्थिक तबाही मचाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भाजपा नफरत की आग भड़का रही है और अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी एवं महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है। उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन में दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में मोदी सरकार पर नफरत का माहौल, महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को लेकर तीखा प्रहार किया है। खड़गे ने कहा कि हम भाजपा को हराने के लिए समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया देश के प्रजातंत्र को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करना होगा। खड़गे ने कहा आज सत्ता में बैठे लोग जनता के अधिकारों पर हमला बोल रहे हैं। आज सबको सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान का संकल्प लेना होगा। खड़गे ने कहा कि आज देश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ सुकमा में पुलिस की नक्सलियों से घंटों चली मुठभेड़, 3 जवान शहीद, 6 नक्सली भी मारे गए। साथ सुकमा जिले में शनिवार को नक्सलियों के साथ पुलिस की घंटों चली मुठभेड़ में एक सहायक उपनिदेशक ASI समेत जिला रिजर्व गार्ड DRG के 3 जवान शहीद हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों की शहीद होने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज P ने PTI भाषा को बताया कि सुकमा जिले के जगरगुंडा और कुंदेड गांव के मध्य सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में DRG के सहायक उपनिरीक्षक 36 वर्षीय रामूराम नाग
35 वर्षीय आरक्षक कुंजराम जोगा और 31 वर्षीय वनजाम भीमा शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ के बारे में सुंदरराज ने बताया कि शनिवार की सुबह जगरगुंडा थाना में डीआरजी के दल को गश्त में रवाना किया गया। पुलिस दल सुबह 9 बजे जब जगरगुंडा और कुंदड़ गांव के मध्य था, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सहायक उप निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मुंबई में आज एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। 2024 की चुनावी रणनीति को लेकर यह अधिवेशन रखा गया है। ओवैसी ने कहा कि नासिर जुनैद को राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा ले जाया गया। उन्होंने कहा कि गौरक्षक आतंक फैलाते हैं। राजस्थान के 2 मुस्लिमों को गौरक्षकों ने मार गिरा दिया। हद तो यह है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप है उनका यूट्यूब पर सिल्वर बटन है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। इसी बीच मुंबई में एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इसमें एमआईएम का नारा है कि अब लड़ना है, आगे बढ़ना है। हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हो रहे आंदोलन पर भी एआईएमआईएम के अधिवेशन में चर्चा होगी। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने अधिवेशन के मद्देनजर बताया कि जो लोग कहते थे कि एआईएमआईएम हैदराबाद का पार्टी है, वे जान ले कि एआईएमआईएम पूरे देश में फैल चुके हैं। हर राज्य में हम फल फूल रहे हैं। कई राज्यों में हमारे विधायक, पार्षद, जिला परिषद के सदस्य हैं। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर राज्य सरकार की मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी आज के बाद औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नामांतरण एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में स्थापित सरकार ने कर दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने को लेकर दी गई अनुमति के बाद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोनों शहरों का नाम बदला गया है। बता दें कि इससे 35 साल पहले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे द्वारा औरंगाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया था। इसके बाद से ही शिव सैनिक और हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा औरंगाबाद को संभाजीनगर के रूप में जाना जाता है। बता दें कि एक तरफ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को बदल दिया गया है, वहीं इस बाबत मुंबई हाईकोर्ट में पहले से ही याचिकाएं दायर हैं। इसी बीच राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दे दी है। अफगान तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह को निरस्त करने और उसके सदस्यों को देशों की सीमा से स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन इस शर्त के साथ ही इस्लामाबाद प्रस्तावित योजना की लागत वहन करेगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में हालिया बढ़ोतरी और अन्य सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को हुई केंद्रीय शीर्ष समिति की बैठक में यह खुलासा हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की और इसमें मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, सेना प्रमुख, डीजी ISI और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक से परिचित सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि प्रतिबंधित TTP और सीमा पर इसके अभयारण्यों का मुद्दा एजेंडे के मुख्य मुद्दों में से एक था। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पड़ोसी देश में TTP की उपस्थिति के बारे में अफगान तालिबान के साथ अकाट्य साक्ष्य साझा करने के लिए इस सप्ताह काबुल का दौरा किया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सेल्फी लीक ऑनलाइन, अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका, रिलीज होते ही HD प्रिंट में लीक हुई सेल्फी। अब समाचार खेल जगत की। लगातार 2 हार के बाद भी खुश है ग्लेन मैक्सवेल, कहा ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में कर रही शानदार प्रदर्शन। आखिर में समाचार बाजार की। एयर इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी एक साथ इतने 1000 नई भर्ती करेगी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आज फाल्के तालुका के हलबरगा में एक कार्यक्रम। बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा हज 2030 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भरने का कार्य जारी। बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी कॉलेज के छात्र की गिरने से मौत, SFI ने संस्थान पर लगाया आरोप। बल्लारी में अमित शाह बोले कर्नाटका को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बीजेपी। कांग्रेस और देश के लिए चुनौतियों से भरा वक्त, बीजेपी और RSS ने हर संस्थान पर किया कब्जा, सोनिया गांधी।
केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।